Welcome again young learners to this part of methods of measuring national income. हमने अपने previous videos में value added method और income method को complete कर लिया है. Now we are moving towards the third method of calculating the national income, that is the expenditure method. We know in an economy the output is always equal to income and इट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर. हमने किया था कि सर्कुलर फ्लो की तीन फेजेस हैं. वन आउटपुट फेज, सेकेंड फेज इज इनकम फेज एंड थर्ड इज द एक्सपेंडिचर फेज. इन द आउटपुट फेज देयर इज द जनरेशन ऑफ आउटपुट एंड द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द आउटपुट इज given to the factors of production which is known as factor income. The factors of production dispose of the income on their final expenditure और जो factors of production है वो अपनी income को dispose of करते हैं on the expenditure, final expenditure. Based on this we have the third method of measuring the national income. इसके basis पर हमारे पास third method आता है, method of measuring national income, that is the expenditure method. According to this method, the national income is sum total of final expenditure made by all economic units in an economy during an accounting year. इस method के according नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ, यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों को ध्यान देना है. दैट इज द नेशनल इनकम इज सम टोटल ऑफ, यानी कि ये टोटल है किसका? फाइनल एक्सपेंडिचर मेड बाय ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स, यानी कि जितनी भी इकोनॉमिक यूनिट्स हैं उन सब ने जितना भी एक्सपेंडिचर एक अकाउंटिंग ईयर में किया है उसका sum total. So now we have to focus on which economic units are there and what kind of expenditure do they make. So the economic units are, we know there are 4 economic units in an economy. This we have discussed earlier also. These economic units are consumers या जिसे हम households भी कहते हैं. The second economic unit is the producers. The third economic unit is the government and the fourth economic unit is the rest of the world. That is the whole expenditure made by the sum total of the expenditure made by all these 4 economic units will be the national income in an accounting year. Now we need to focus that what kind of expenditure do they make. पहली बात हमें ध्यान रखना है कि ये final expenditure होना चाहिए. That means we do not take into the consideration the intermediate expenditure. Only the value of final expenditure made will be taken into the consideration. So what kind of final expenditure do they make? The consumers make the final expenditure in the form of personal या private final consumption expenditure. यानी कि consumers है तो consumption करेंगे. So that is why their expenditure is termed as private या personal final consumption expenditure. So the producers do the investment in the economy, so their expenditure is made, the expenditure made by the producers will be known as final investment. The government does the government final consumption expenditure, and from rest of the world we have exports and imports, the net balance of exports and imports. So when we add up all these 4 components, जब हम इन चारों components को add कर देते हैं, that is personal या private final consumption expenditure, investment, government consumption expenditure and exports and imports, we get the value of GDPMP in the current accounting year. Basically the personal या प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम C से डिनोट करते हैं, C फॉर कंजम्पशन. द इन्वेस्टमेंट इज डिनोटेड एज I, द गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज डिनोटेड एज G एंड एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स का जो नेट बैलेंस है, द एक्सपोर्ट्स आर डिनोटेड एज X while the imports are denoted as M. The net balance of that is X minus M.
So that means the GDP MP according to expenditure method is C plus I plus G plus X minus M. अब हम इन सभी कंपोनेंट्स को थोड़ा और डिटेल में करेंगे कि पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है, एंड हाउ डू वी ट्रीट द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, द बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स. आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. So the first component of the final expenditure under the expenditure method is personal या private final consumption expenditure, जिसे हम C से भी denote करते हैं. तो under the private or personal final consumption expenditure, this expenditure is made by the households और individuals, या तो हाउसहोल्ड्स और इंडिविजुअल्स ने जो भी एक्सपेंडिचर करंट अकाउंटिंग ईयर में किया है उसका सम टोटल. बेसिकली द एक्सपेंडिचर मेड बाय द हाउसहोल्ड और द इंडिविजुअल्स कुड बी ऑन द परचेज ऑफ कंज्यूमर सर्विसेज को परचेज करने के लिए. इट कुड बी फॉर द परचेज ऑफ कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स. हम जानते हैं द नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर द गुड्स विच आर यूज्ड अप इन द सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, जिन्हें सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में यूज अप कर लिया जाता है, जैसे कि मिल्क, बटर एटसेट्रा. देन वी हैव कंज्यूमर सेमी ड्यूरेबल एंड ड्यूरेबल गुड्स. सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स हैं जिन्हें कंपैरेटिवली अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि क्लोथ्स, शूज़ एटसेट्रा. The consumer durable goods are those goods which could be used up for a longer period of time, for example cars, the electronic items etc. So these are the items on which the consumer may spend the income, जिस पर consumer अपनी income को खर्च कर सकता है. और we can say the expenditure made could be in the form of consumer services, consumer non-durable goods and consumer semi-durable and consumer durable goods. Then we have the second component, that is the investment. The second component is investment expenditure. Now this investment expenditure in the question could be given to you in three forms: investment expenditure, gross capital formation या gross domestic capital formation. Any of these components indicate the investment in the economy. कोई भी एक component आपको दिया है, इन सभी का मतलब है investment. The gross domestic capital formation is also abbreviated as GDCF. Gross domestic capital formation is also abbreviated as GDCF. The gross domestic capital formation is the investment made by the producer on the purchase of machines etc. So this is the expenditure made by the producers on the purchase of the final investment products, for example machines, equipments etc. Now in the question you could be given with the any of these components, but at times you are not given with the gross domestic capital formation but the components of this. The component of the gross domestic capital formation are gross domestic fixed capital formation. Now the difference between this and this is, here we have gross domestic fixed capital formation. It means that the investor does not invest or the producer does not invest only in the fixed assets but also invest in the inventory. वो inventory में भी investment करता है. तो जब आपको fixed investment given है, that is also abbreviated as GDFCF, जिसे हम GDFCF से भी एब्रीवेट करते हैं, और कई बार इसे क्वेश्चन में आपको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी गिवन होता है. सो एनी ऑफ दिस इज गिवन, इनमें से कोई भी गिवन है, दोनों ही क्या है, फिक्स्ड कैपिटल है. जब आपके पास फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, इन दैट केस वी हैव टू एड अप द चेंज इन
stock, and we know the change in stock is calculated as closing stock minus opening stock. So here we have to focus on this, that when we are given with the gross domestic capital formation, जब हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, इट मीन्स वी हैव बीन गिवन द होल वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक. बट if we are given with the fixed capital formation, जब हमें fixed capital formation given है, in that case we have to add up the change in inventory या change in stock. हमें उस केस में change in inventory या change in stock को add करना होता है. अब बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी गिवन नहीं है, तो ऐसे केसेस में द फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कुड बी इन 3 फॉर्म्स, यानी कि जो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है वो 3 फॉर्म्स में हो सकती है. दीज आर द रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, द रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड्स. हाउस होल्ड ने जितना भी रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन पर खर्चा किया है करंट अकाउंटिंग ईयर में, इट कुड बी अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, इट कुड बी एन एडिशन टू द फ्लोर और एडिशन इन द फ्लोर ऑफ द एग्जिस्टिंग हाउस, या तो पहले से जो घर है उसमें फ्लोर का एडिशन किया है या फिर उसने किसी भी तरीके के नए घर का कंस्ट्रक्शन किया है. दोनों ही केसेस में द वैल्यू विल बी एडेड. Then plus fixed investment by producers, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट जो प्रोड्यूसर्स कर रहे हैं, जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल में किया था, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ मशीन्स, इट कुड बी इन द इक्विपमेंट्स, इट कुड बी इन द ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स एक्सेट्रा, प्लस द गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ऑन पब्लिक वर्क्स. Government investment on public works, for example मेकिंग ऑफ schools को कंस्ट्रक्ट कराना, हॉस्पिटल्स को कंस्ट्रक्ट कराना, ये सारे एक्सपेंडिचर जब गवर्नमेंट कर रही है, दीज आर द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है. सो लेट अस हैव अ क्विक रिविजन ऑफ दिस, बिकॉज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड component that we'll be having in the question is of the GDCF or investment. The investment expenditure is also written as I. The investment expenditure could be given to you, the gross capital formation could be given to you, or you are given with the gross domestic capital formation, which is abbreviated as GDCF. If in the question the GDCF is given, well and good. If it is not given, then the components of GDCF are gross domestic fixed capital formation. यदि आपको fixed capital formation given है, it implies that the value of change in stock has to be added. So we add up the change in stock so as to get the gross domestic capital formation. बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि आपको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी गिवन नहीं होती. In that case, first we need to calculate the fixed investment. How is it calculated? The fixed investment is the sum total of residential constructions by household plus fixed investment by the producers plus government investment on public works. Once these are added, जब आप इन्हें ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, the total fixed investment, and when the fixed investment is added to the change in stock, we get the value of GDCF, or we say it is the total investment expenditure in the economy in the current accounting year. आप इसका एक screenshot ले सकते हैं. So the third component of the expenditure method is government final consumption expenditure, which is also written as G, जिसे हम G से भी डिनोट करते हैं. The government does the final expenditure on defense, on administration. तो जितना भी खर्चा ये गवर्नमेंट कर रही है, ऑल दिस इज द गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ये सारा का सारा गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है. यहाँ से हमें एक चीज़ बहुत छोटी सी जो है वो ध्यान रखनी है. यदि हमें गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट गिवन है, द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट इज द पार्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, GDFCF का पार्ट है. लेकिन यदि आपको गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर
एक्सपेंडिचर दिया है दैट विल कॉन्स्टिट्यूट जी। वो किसका पार्ट है? जी का पार्ट है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें यदि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है इट इज़ जी। यदि हमें गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट दी हुई है इन दैट केस इट इज़ द पार्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। देन द फोर्थ कंपोनेंट वी हैव इज द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। जब हमारे पास फोर्थ कंपोनेंट आता है वो आता है एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स विच इज कॉमनली रिटन एज एक्स माइनस एम। हम जानते हैं एक्सपोर्ट इज द डिमांड ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स इन अब्रॉड while import is the expenditure made by the residents of a country in the goods produced abroad। जो बाहर गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उसकी डिमांड जब हमारे रेजिडेंट्स कर रहे हैं दैट इज़ द इम्पोर्ट, एंड जब फॉरेनर्स हमारे गुड्स की डिमांड कर रहे हैं, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स की डिमांड कर रहे हैं, दैट इज़ द एक्सपोर्ट। अब ऐसे केसेस में द एक्सपोर्ट, द बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स इज देयर that has to be added in the GDP-MP, जिसे हम GDP-MP में ऐड करेंगे। अब यहाँ से हमें दो चीज़ों को और ध्यान रखना है। यदि आपको एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स सेपरेटली दिए हैं तो ऐसे केसेस में दी GDP-MP विल बी इक्वल टू C plus I plus G plus X minus M. So the first way that could be given to you is the exports and imports could be given to you separately. At times you are given with the value of net exports. कई बार आपको क्वेश्चन में net exports भी given होते हैं. So at times you are given with the net exports. जब आपको क्वेश्चन में net exports given है तो ऐसे केसेस में the GDP-MP is equal to C plus I plus G plus net exports. It implies that X minus M is nothing but the value of net exports. पर at times क्वेश्चन में आपको net imports given होते हैं। यदि आपको क्वेश्चन में net imports given है, in that case the GDP-MP is equal to C plus I plus G minus net imports सो हमें यहाँ से ये ध्यान रखना है कि यदि एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स की वैल्यू सेपरेटली गिवन है देन वी विल बी टेकिंग एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो हम लेंगे एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। यदि हमें नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है देन वी विल बी डायरेक्टली एडिंग दी नेट एक्सपोर्ट्स, तो हम डायरेक्टली नेट एक्सपोर्ट्स को ऐड कर देंगे। लेकिन यदि हमें नेट इंपोर्ट्स गिवन है, यदि हमें नेट इंपोर्ट्स गिवन है तो उस वैल्यू को हम डिडक्ट करेंगे। एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं सभी कंपोनेंट्स का। आप इसका पहले एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडिचर मेथड, the GDP-MP, that is the gross domestic product at market price, is equal to C, that is प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम यहाँ पर ले लेते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस द इन्वेस्टमेंट I प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर G एंड प्लस X माइनस M, और वी कैन राइट डाउन नेट एक्सपोर्ट्स। हम यहाँ इसे नेट एक्सपोर्ट्स भी लिख सकते हैं। सो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और द वैल्यू ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स। क्वेश्चन में आपको बाकी चीज़ें एज इट इज़ गिवन होंगी, बट एट टाइम्स यू मे बी हैविंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। द इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हम इन्वेस्टमेंट को ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। यदि आपको क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन नहीं है देन वी एड अप द ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक। फिर हम इन दोनों को ऐड करके ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू निकालते हैं। यदि क्वेश्चन में आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी गिवन नहीं है तो इट इज द टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर मेड बाय हाउस होल्ड ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन,
रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन पर जो हाउस होल्ड ने खर्चा किया, इन्वेस्टमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन फिक्स्ड असेट्स एंड गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ऑन पब्लिक वर्क्स। इन सबको टोटल करके हम क्या निकाल लेंगे, द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट कर लेंगे एंड देन इट विल बी एडेड टू चेंज इन स्टॉक। हम जानते हैं कि वंस वी गेट द GDP-MP, द नेशनल इनकम इज रिप्रेजेंटेड बाय NNPFC। हम जानते हैं वो एग्रीगेट जो नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करता है वो है NNPFC, दैट इज नेट national product at factor cost. We have calculated GDP-MP. हम यहाँ से GDP-MP की वैल्यू को कैलकुलेट कर चुके हैं। ग्रॉस से नेट का कैलकुलेशन करने के लिए हमने पहले भी किया है कि हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम NFIA ऐड करते हैं, जबकि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं। तो दैट मीन्स वंस वी हैव द वैल्यू ऑफ GDP-MP, एक बार हमारे पास GDP-MP की वैल्यू आ जाएगी तो हम जो एग्रीगेट हमसे कहा गया है उस एग्रीगेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड वी शुड नॉट फॉरगेट द GDP-MP हियर इज C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बेसिकली जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा वो किसके अंदर आएगा, इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आएगा। यदि आपको इन्वेस्टमेंट्स गिवन नहीं है तो हो सकता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन हो, दैट इज एब्रीवेटेड एज GDCF। देन ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यदि गिवन है, इन दैट केस वी विल ऐड अप द चेंज इन स्टॉक। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। As we have done in our previous videos also, that there could be a question of 4 marks, that what are the precautions regarding the value added method, the income method. Now we will be doing the precautions regarding the expenditure method, that is कि जब हम expenditure method को करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। So the first one is the intermediate expenditure। क्या हमें इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करना चाहिए? द आंसर इज इट इज़ नॉट इंक्लूडेड। हम जानते हैं कि इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को इंक्लूड नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? सो एज टू अवॉइड डबल काउंटिंग। दैट मीन्स डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हमने किया था अपने प्रीवियस वीडियोस में से कि डबल काउंटिंग वो होता है जहां पर एक ही कमोडिटी की वैल्यू को मोर देन वंस कैलकुलेट किया जाता है। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड द डबल काउंटिंग, द इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर इज नॉट इंक्लूडेड, दैट इज ओनली द एक्सपेंडिचर मेड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल goods and services is taken into consideration। केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर किए गए खर्चे को ही कंसिडर किया जाता है। दैट मीन्स कि इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को हम एक्सपेंडिचर मेथड में के थ्रू नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय इंक्लूड नहीं करते, सो एज टू अवॉइड डबल काउंटिंग एंड हेंस वी टेक ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज द एक्सपेंडिचर मेड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देन वी हैव फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या हम फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को लेते हैं? हमने जस्ट किया है, इट इज इंक्लूडेड the value of final consumption expenditure by all the sectors. We know under according to expenditure method the national income is sum total of final expenditure made by all economic units। यानी कि जितनी भी इकोनॉमिक यूनिट्स का फाइनल एक्सपेंडिचर है
उसका सम टोटल नेशनल इनकम होगा। और जब हम बात करते हैं फाइनल एक्सपेंडिचर की, तो इसका मतलब है कि हम फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को भी इंक्लूड करेंगे। देन वी हैव एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। हमने पहले भी किया है कि सेकेंड हैंड गुड्स पर किया गया खर्चा इंक्लूड नहीं होता, ना ही तो सेकेंड हैंड गुड्स पर इनकम को इंक्लूड करते हैं, ना ही उस पर हुए खर्चे को इंक्लूड करते हैं। सो इट इज़ नॉट इंक्लूडेड। क्यों इंक्लूड नहीं किया जाता? There are two reasons for that. One, there is no generation of output in the current year. पहली बात तो कि इस तरीके का आउटपुट करंट ईयर में जनरेट नहीं हुआ. There is no addition to the flow of goods and services in the current year. Supposingly a car had been sold to the second party. In that case, in the current year, that car was not produced. So, not included since there is no increase in the flow of goods and services in the current year. करंट ईयर में किसी भी तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो में इंक्रीज नहीं हुआ है. मोर ओवर द वैल्यू ऑफ दैट कमोडिटी वुड हैव बीन इंक्लूडेड in the national income in the year of its production. So also the value of such commodity had been included in the year of production. यानी कि जिस साल में उसका प्रोडक्शन हुआ है उस साल में उसकी वैल्यू को इंक्लूड कर लिया गया होगा. फिर हमारे पास आता है एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. पहले हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल एसेट्स होती क्या हैं. द फाइनेंशियल एसेट्स आर लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा. क्या इनमें किसी भी तरीके का किया गया खर्चा इंक्लूड होगा? यहाँ से हमें दो चीज़ों को ध्यान रखना है. पहले हम कर लेते हैं कि क्या परचेज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स पर किए गए खर्चे को इंक्लूड करेंगे. देन वी विल बी हैविंग अ डिस्कशन रिगार्डिंग अ वेरी स्मॉल थिंग हियर, अ वेरी माइन्यूट थिंग हियर, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स इज नॉट इंक्लूडेड. हम किसी भी तरीके का खर्चा यदि शेयर्स या बॉन्ड्स को खरीदने में करते हैं तो वो इंक्लूड नहीं होगा. क्यों? बिकॉज दिस इज only the transfer of ownership या केवल पेपर ट्रांसफर्स हैं, या हम क्या कह सकते हैं, केवल पेपर ट्रांसफर्स हैं. इट इज ओनली द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप और द पेपर ट्रांसफर्स, दैट इज नो एडिशन टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज in the current accounting year. करंट अकाउंटिंग ईयर में किसी भी तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ा नहीं है. अब यहाँ पर एक छोटा सा जो बहुत माइन्यूट सी चीज़ है वो ये, एट टाइम्स कई बार आपके पास क्वेश्चन आता है या बोर्ड में आ भी चुका है कि फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स को क्या हम इंक्लूड करेंगे. यदि किसी भी तरीके का खर्चा फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स पर किया जाता है तो क्या उसे इंक्लूड किया जाएगा. शेयर्स चाहे किसी भी तरीके के हों, चाहे वो न्यूली इशूड शेयर्स हों या उन्हें ओपन मार्केट में से खरीदा गया है, दोनों तरीके के शेयर्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाएगा. क्यों नहीं किया जाएगा? बिकॉज दीज आर ओनली द पेपर ट्रांसफर्स. क्योंकि ये केवल पेपर ट्रांसफर्स हैं, किसी भी तरीके का आउटपुट इंक्रीज नहीं हुआ. देयर इज नो जनरेशन ऑफ इक्विवेलेंट आउटपुट इन द इकोनॉमी एंड हेंस दीज विल नॉट बी इंक्लूडेड वेदर इट इज न्यूली इशूड शेयर्स और द शेयर्स दैट had been existing in the market and had been purchased from the open market. एक क्विक रिविजन ले लेते हैं इनका. इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता so as to avoid the double counting. Then
फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को इंक्लूड किया जाता है बिकॉज वी नो दैट अंडर एक्सपेंडिचर मेथड वी टेक ऑल द फाइनल एक्सपेंडिचर दैट इज मेड बाय द इकोनॉमिक यूनिट्स इन द करंट अकाउंटिंग ईयर. देन एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड. इसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा क्योंकि ये केवल पेपर ट्रांसफर्स हैं, केवल ये ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप है और किसी भी तरीके का करंट फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज में एडिशन नहीं होता और इनकी वैल्यू को उनके प्रोडक्शन ईयर में इंक्लूड किया जा चुका होगा. देन परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. द फाइनेंशियल एसेट्स आर लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा. इन्हें हम इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ये केवल ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप या पेपर ट्रांसफर्स हैं, चाहे वो न्यूली इशूड शेयर्स है चाहे वो एग्जिस्टिंग शेयर्स को परचेज करना है. बोथ केसेस में, दोनों केसेस में इसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा क्योंकि किसी भी तरीके के करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्रीज नहीं हुआ है. आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. The next precaution is regarding the transfer payments. हम जानते हैं कि transfer payments unilateral payments होती हैं that are given without any real flow. क्या हम transfer payments को include करेंगे? The answer is not included. क्यों? क्योंकि since these are unilateral in nature, क्योंकि ये unilateral in nature होती है, unilateral in nature and there is no increase in flow of goods and सर्विसेज. किसी भी तरीके का गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज नहीं हुआ है. दैट इज देयर इज नो इक्विवेलेंट रियल फ्लो क्योंकि इसके इक्विवेलेंट कोई रियल फ्लो नहीं हुआ है. दीज आर यूनिलेटरल इन नेचर. क्योंकि यूनिलेटरल है इसीलिए हम ट्रांसफर पेमेंट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे. द ट्रांसफर पेमेंट्स माइट बी इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन, चैरिटी, किसी भी तरीके का दिया गया डोनेशन, चैरिटी, हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे. देन वी हैव द एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन. क्या हम इसे इंक्लूड करेंगे? द आंसर इज द इम्प्यूटेड वैल्यू इज इंक्लूडेड. द इम्प्यूटेड वैल्यू इज इंक्लूडेड. हम जानते हैं कि इम्प्यूटेड वैल्यू का मतलब होता है द इम्प्यूटेड वैल्यू इज द मार्केट वैल्यू ऑफ सच कमोडिटी. उसी कमोडिटी की जो मार्केट वैल्यू है ना, वो क्या है? इम्प्यूटेड वैल्यू कहलाती है. द मार्केट वैल्यू ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ कमोडिटी विल बी नोन एज इम्प्यूटेड वैल्यू. उसे हम क्या कहेंगे? इम्प्यूटेड वैल्यू कहेंगे. तो उसे हम इंक्लूड करेंगे. द इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सच कमोडिटी इज इंक्लूडेड. यहाँ हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है. एक्सपेंडिचर on goods purchased for self consumption. The goods could be in the form of, जो goods हैं वो आपके पास दो फॉर्म्स में हो सकते हैं. These could be the commodities, किसी भी तरीके की commodity, जैसा हमने पहले भी किया था कि if a producer retains some of the goods produced by him for self consumption, यदि प्रोड्यूसर ने कुछ गुड्स को अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए रिटेन कर लिया है तो उसकी मार्केट वैल्यू को हम इंक्लूड करेंगे. ऑन द अदर हैंड द कमोडिटीज, इट कुड बी द रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन. यदि किसी भी तरीके का रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन है उसे भी हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि हमने पहले भी किया है कि इम्प्यूटेड रेंट विल बी इंक्लूडेड. दैट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ द हाउस वेदर इट हैज़ बीन रेंटेड आउट और ऑक्यूपाइड बाय द ऑनर इटसेल्फ. चाहे उसे रेंट पर दिया गया है या उसे ऑनर ने ऑक्यूपाई कर रखा है. द इम्प्यूटेड वैल्यू, द इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सच काइंड ऑफ हाउस विल बी इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम. हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू को इंक्लूड करेंगे. तो एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं सभी प्रिकॉशंस का. फर्स्ट वाज इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर. क्या इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को इंक्लूड किया जाएगा? द आंसर इज नो, सो एज टू अवॉइड द डबल काउंटिंग. फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को इंक्लूड किया जाएगा? द आंसर इज येस, उसे इंक्लूड किया जाएगा बिकॉज वी टेक इनटू द कंसिडरेशन ऑल द फाइनल एक्सपेंडिचर मेड बाय द इकोनॉमिक यूनिट्स. परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स पर किया गया खर्चा, परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स
पर किए गए खर्चे को हम इंक्लूड करेंगे नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू को उसी के प्रोडक्शन ईयर में इंक्लूड किया जा चुका है। परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, किसी भी तरीके की फाइनेंशियल एसेट्स पर किए गए खर्चे को क्या इंक्लूड किया जाएगा? द आंसर इज नो, बिकॉज इट इज ओनली द ट्रांसफर ऑफ पेपर्स, केवल पेपर ट्रांसफर्स हैं। देन किसी भी तरीके की ट्रांसफर पेमेंट्स को इंक्लूड किया जाएगा? द आंसर इज नो, नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये यूनिलेटरल इन नेचर है और किसी भी तरीके के करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्रीज नहीं करती। देन प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, क्या प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन को इंक्लूड किया जाएगा? यस, द इम्प्यूटेड वैल्यू विल बी इंक्लूडेड। एक चीज़ हमें यहाँ ध्यान रखनी है कि यदि किसी भी तरीके का लेजर टाइम एक्टिविटी है, मैंने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया था हमारे प्रीवियस वीडियो में, कि लेजर टाइम एक्टिविटी में किए गए प्रोडक्शन को हम इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज दैट एक्टिविटी इज आउट ऑफ द हॉबीज, क्योंकि वो एक्टिविटी आप अपनी हॉबी के तौर पर कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अदरवाइज द गुड्स रिटेन फॉर सेल्फ कंजम्पशन बाय द प्रोड्यूसर विल बी इंक्लूडेड, द इम्प्यूटेड वैल्यू विल बी इंक्लूडेड। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो चिल्ड्रन, इसी के साथ हमने हमारा एक्सपेंडिचर मेथड कंप्लीट कर लिया है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।